So on behalf of Sagar Institute of Research and Technology Excellence, which is NAAC accredited now, and IIC cell of the institute, we would like to inform you that again we are here to organize our session 1 subsection 2, and I would like to welcome our today's speaker Divyang Singh sir. Thank you, ma'am. I'm waiting for a few more audience to join, but I think it will be late. So before starting the event, this is our culture to introduce our group with the help of one beautiful video. It will take hardly 2 minutes. So I would like to share this.
So in the absence of our respected director sir, because he is busy in some important meeting, I would like to welcome our today's guest, Mr. Divyan Singh sir. He is CEO and founder of Innovative Biz Technology Private Limited, one of the important company which is providing solutions for training, placements, and technologies and website development, many more. We would like to hear you from the Divyan Singh sir in this, and I'm feeling very proud to announce that Divyan is one of the alumni of our institute and entrepreneur as well, and we feel very proud to have such a wonderful student with us, and now a young entrepreneur with us. So over to you, Divyan. Thank you so much, ma'am. Thank you for the introduction. So a very good afternoon to everyone. Hope you are doing fine. Well, we all know that this session is on a general introduction about my entrepreneurship journey and the technological advancements. So to begin with, first of all, like ma'am mentioned that I'm also an alumni. So I passed out in 2013. And just as I passed out, I started my own work. So to all my friends up here, trust me, I ज़्यादा bore नहीं करूँगा. I have things which are like very exciting. कि technological advancements आज की date में क्या है? I'll be showing you some demonstrations how technology has evolved. I mean like जब 2013 में हमने start किया था work, तब technology wise हम कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं? I mean, I have seen that part. जब आज हम जो WhatsApp use करते हैं, तब it was like SM मतलब सामने आया ही था. I used to use a Windows phone. So मेरे friends मुझे खूब चिढ़ाते थे कि Windows phone पे उस time पे WhatsApp नहीं आया था. तो ये सारे phases जो देखे, and then उसके बाद एक trend start हुआ कि to make applications for Android and Windows and Apple. So ये भी एक बड़ा trend था जहाँ पे like we have seen a lot of apps being built in front of us. Best part was even we were a very good part in this thing, and how we were a part in this thing was जब हम pass out हुए मैं और मेरे partners. So I passed out in 2013. So हमने हमारी company start की. I worked with Microsoft. Ma'am knows I worked with Microsoft when I was in college. So that was a very very good exposure for me. Even I'll share how you guys can work with Microsoft even during your college tenure. अभी आप college में हैं तो आप कैसे connect हो सकते हैं ये भी detail मैं आपको भी दूंगा. So I want you all to listen very carefully how things are going. कैसे आप अच्छे placements की तरफ जा सकते हैं. So things are very good. So when we started our business, the first and the foremost thing was since we were associated with Microsoft, तो आप में से कई लोग हैं जो Zomato use करते हैं. तो Zomato का जो first food ordering app था, which was जो we can say Windows Phone का, so वो हमने develop किया, हमारी company ने develop किया. Then उसके बाद आपका Clear Trip, Economic Times, इनके Windows Phone के versions हमने develop किए. So basically these are some of the clients we are catering till date. मैं आपको एक छोटी सी presentation हूँ which we developed in 2013. So 2013 में हमने ये presentation develop किया था, and then I'll show you our company profile which is currently we are using. So you'll see the difference in both of them. So is my screen visible? Yes, Divyansh, it is visible. Okay, great. So जब हमने business start किया तो that time our firm's name was Innovative Business Solutions, and ये logo था उसका, we were partner with Microsoft, तो ये हम थोड़ा सा flaunt भी करते थे. तो उस टाइम पे about us बड़ा अच्छा सा हमने लिखा, बहुत क्योंकि ज्यादा कुछ पता नहीं था कि business में आ तो गए थे but पता कुछ ज्यादा था नहीं कि कैसे होता है क्या होता है. So we started off with like 2011 का हमारा firm foundation था. Then उसके बाद after the firm foundation part, इसमें हमारे जो founding members थे वो भी like 2003 से consultation में थे. Then हमारी जो team थी उसके बारे में एक basic description हमने दिया. Eventually ये कुछ हमारी services थी जो हमने उस time पे रखी थी कि हमारी कौन सी services हैं. So like we were into website development, ERP solutions, mobile application.
social media, software development and training programs. तो ये जितनी चीजें थी हम इन सभी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, तो ग्रेजुअली फिर समझ में आया कि इनको हमें थोड़ा सा कट शॉर्ट करना होगा। लाइक ये प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का था हमारा वर्क उस टाइम पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थे हम, ये कुछ वेबसाइट्स हमने बनाई, ERP सॉल्यूशंस, बट देन द बेस्ट पार्ट वाज वी न्यू अबाउट द टेक्नोलॉजी, तो हम थोड़े से एडवांस थे। लाइक यू कैन सी हम SAP पे भी वर्क करते थे उस टाइम पे, सो SAP पे हमने वर्क किया। देन इसके बाद ये हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, वी वर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द थिंग्स। हम कई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, जैसे एंड्रॉइड, iOS, फुल स्टैक, जावा एंड ऑल, इन सब पे। उस टाइम पे भी ये कुछ हमारे की क्लाइंट्स थे, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, क्लियर ट्रिप, जोमेटो, विज रॉकेट, मोबॉन्ड, बाटा, NSB, BPO, दैनिक भास्कर। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिनके साथ हम वर्क करते थे। हमारी एक लाइन है जो हम हर बार यूज करते हैं, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। एक बार आप इसको रीड करिए, आपको पता चलेगा कि क्या इसका मतलब होता है। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी लाइन है ये, कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो ये हमारी उस टाइम पे एक प्रोफाइल थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या हमारा प्रोफाइलिंग है, अब हम कैसे वर्क करते हैं। सो आई विल शो यू दैट। बहुत सारे चेंजेस हुए। ये हमारी ब्रांडिंग चेंज हुई, फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, वी टर्न्ड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो नाउ वी आर इनोवेटिव बेस्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हमारे अगर मैं बात करूं तो ये एक मिशन और विजन है हमारा। अवर विजन इज टू डिलीवर प्रीमियम सर्विस एंड बिल्ड लाइफ टाइम वर्किंग रिलेशनशिप्स विद ऑल स्केल्स ऑफ क्लाइंट। चाहे वो क्लाइंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हम उसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, उसको अच्छी सर्विस देते हैं। हमारा मिशन है टू रियलाइज अवर विजन, अवर मिशन इज टू सरपास द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर क्लाइंट। हमारे जो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन है हमसे, हम उसको सरपास करना चाहते हैं हर बार, ताकि उससे हमारे अच्छे रिलेशंस बने रहें। ये कुछ हमारी कोर वैल्यूज हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। अगर ये कोर वैल्यूज हमारे किसी भी एम्प्लॉय में नहीं हो पाती है, देन वी डू नॉट टेक दैट एम्प्लॉय, और इमीडिएटली द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड। द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कस्टमर डिलाइट। सबसे पहली चीज, एवरी बिजनेस नीड्स कस्टमर। हर बिजनेस को एक कस्टमर चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा हो। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है तो फिर लाइक यू कैन वर्क वेरी वेल। है ना। तो पता है मैं देखता हूँ बेस्ट सेकंड से ना बहुत सारे क्वेश्चन आने पड़ जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन पड़ जाते हैं। Then the next is extreme ownership. अगर कोई भी हमारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, वी मेक श्योर कि वो हम अपना ही एक प्रोजेक्ट मान के चलते हैं, हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट मान के चलते हैं, सो दैट उसकी एक ओनरशिप हमारी खुद की होती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोजेक्ट, वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड we are motivated towards developing that project into a better part. फिर passion and opinion, we love what you do and always have an opinion for what others do. And team integrity, हमारी टीम की एक खासियत है, there is a good integrity of the team. We are transparent and ethical. We do not work in ways like many other people work, कि client को गलत commitment किया, जब commercial से आ गए तो कुछ गलत किया. So we do not like that at all, and neither we work in that way. सो अब जैसा मैंने आपको दिखाया कि आपने हमारी प्रोफाइल में पहले देखा होगा कि हम बहुत सारा काम करते थे। We have cut it short and we have brought down to 4 major verticals. The first and the foremost vertical is business process automation. ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, एंड इसके बाद मैं आपको कुछ डेमोस भी दूंगा। यू विल सी कि लाइक कितना टेक्नोलॉजी ने कितना इवॉल्व किया है। एंड ट्रस्ट मी, आज आपको कुछ एक दो चीजें ऐसी सीखने मिलेंगी कि शायद कल से आप कुछ अपने सॉफ्टवेयर खुद बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। So first is business process automation, second is IT consultancy, third is trainings, and fourth is digital marketing. अगर मैं business process automation की बात करूं तो आज ये एक बहुत बड़ी नीड है, हर इंडस्ट्री की, हर स्केल ऑफ बिजनेस की एक बहुत बड़ी नीड है। और है कि आपके जो भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतने चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के, डिले के, टाइम वेस्ट होने के, और हम जैसे जितने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा हम पैसा उसमें
खर्च करते हैं. So now what happens is in business process automation हम वो processes को automate करते हैं ताकि आपके जो human resources हैं या तो आप उनको हटा सकते हैं. अगर आप उनको हटाते हैं तो obviously आप अपना पैसा बचा रहे हैं, या फिर आप उनको उन वर्क में लगा सकते हैं जो एक्चुअल में आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू वो जो डेली वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताता हूँ इसका. मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रीज हैं जिनके साथ हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं. जैसे एक फैक्ट्री है, उनके बिल्स जनरेट होते हैं टैली पे. वो बिल्स जनरेट होने के बाद एक उनका जो मेंबर है वो उसको उनके क्लाइंट की वेबसाइट पे उन बिल ऐड ऑन करता है, डिटेल्स पुट अप करता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब वो पुट अप करता है तो कम से सिर्फ 8-10 बिल्स को ऐड करने में ही इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 hours. It takes almost like 5 to 7 hours. अब 5 to 7 hours तक वो अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता. So now what happens is हमने उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया. जो 5 to 7 hours की प्रोसेस थी हमने उसको रिड्यूस कर दिया टू 10 minutes. सिस्टम ऑटोमेटिकली टैली से बिल निकालता है, वेबसाइट पे सबमिट करता है और उसके बाद जो है आपको अपडेट कर देता है कि आपके बिल सबमिट हो गए. तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो वहां पे जो मेंबर है वो कितना उसका टाइम बच रहा है, उस कंपनी का टाइम बच रहा है. ऐसे ही हम कई ऑटोमेशंस में ऐसे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी को ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल कई कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि जैसे ही हमारे पास कोई हमारा बिल आता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली फेच हो हमारे ईमेल से ही वो पीडीएफ निकले, अपने आप रीड हो, उसका डेटा एक जगह स्टोर हो और वो स्टोर होने के बाद हमारे बिल प्रोसेस होते जाए. सो नाउ दिस अगेन इज अ कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस. अब यहाँ पे आपको एक मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कोई ह्यूमन एरर भी नहीं होगा, कोई इंसान नहीं है तो उससे कोई गलती भी नहीं होगी. तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं. सो दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं जो SAP यूज करती है, तो SAP जो कंपनी यूज करती है उनको वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्सेज यूज करने होते हैं जो SAP पे वर्क करते हैं. On an average salary start from like 35-40,000 and goes up to like 3 lakh 4 lakh. अब अगर हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं तो उनको इन लोगों की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली वो नहीं खर्च कर रहे हर महीने. सो दिस इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. आई होप आप ये समझ सकते हैं कि अभी इसकी कितनी डिमांड है. देन कम्स IT कंसल्टेंसी. इसमें वी वर्क ऑन वेरियस थिंग्स. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द ERP, SAP and Salesforce. Then cloud services, AWS, Microsoft Azure and Google Cloud. Then we create custom mobile applications and web development. We do web development. Then custom software development. Then we have low code and no code. जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं उनको चाहूंगा कि आप इस टर्म को ध्यान रखें, चाहे लिख लें अपने पास. ये बहुत अच्छी चीज है, लो कोड एंड नो कोड. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता कभी प्रोग्रामिंग में तो आप इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे विदाउट कोडिंग यू कैन मेक वेरी गुड मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस. देन वी हैव ई-कॉमर्स डेवलपमेंट. मैं इसके एग्जांपल्स पे भी आऊंगा, एक आपको छोटा सा एक डेमो भी अभी मैं दिखाऊंगा अबाउट नो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें हम बिल्कुल कोई सा भी एक कोड, कोई भी एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखेंगे और हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा. देन वी हैव ई-कॉमर्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट. Thirdly, we are into training programs. So training programs, we provide trainings on PHP, C#, .NET, Java, Angular, Ionic, Android, and many other things. So ये हमारे कुछ training programs है. If you can see, it's on data science, Python, Java, C, C++, .NET, C#, MVC, AI, machine learning, full stack web development, cloud computing, no code app development, digital marketing. We also run various programs like 100% placement programs, that is on data science, software testing, full stack Java development, full stack web development, cloud computing, and digital marketing. And our last vertical is again digital marketing, where we Is there any query? Okay, so we do digital marketing for various universities, institutions, and even Dainik Bhaskar is one of our clients जिनका digital marketing हम handle करते हैं.
So these are some of the key clients we work with. इन clients के साथ हम work करते हैं, आप देख सकते हैं, और ये बहुत सौ में से कुछ हैं जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर पा रहे हैं, जगह नहीं थी ज्यादा. एंड अगेन हमारे जो एक थॉट प्रोसेस है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जो प्रेडिक्ट करना चाहते हो सच उसको क्रिएट ही कर लो आप अपना फ्यूचर. So you guys can connect with me anytime. So this is one of our training brochure. Let me show you. So these programs, like I mentioned, and you can see these are some of the students who recently got placed from our institute. This is Vivek Kumar Singh. He got multiple packages starting from like 7.5 lakh to 4 lakh, 3.5 lakh. Then Ankit Raj in Wipro for 6.5 lakh, Omi Verma in Qualys for 5.24, and so on. So we make sure that when we teach you, वो उसका एक purpose हो सिखाने का. It's not just कि आप कुछ सीखें and it's over. अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको implement करना. We can help you with your internship programs. We can help you with your projects. Let it be a minor or major project. So you guys can connect with me anytime. So if you want my contact details, you can like basically you can just take a screenshot of this. So you can connect at our center as well. If you need any support or anything, feel free to contact us. Then let's proceed towards some demo. अभी आप सभी के जो है कैमरास और स्पीकर्स बंद है, सो आप अपने में लिखें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं. if I can see some good number of yes, I'll show you a demo जहाँ पे आप वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड बना सकते हैं. So can I get some yes in my chat box? Okay. So just one yes, and I see like we have 85 people and just one person wants to know how we can create application without writing a single line of code. Okay, so all right, so I'm getting a good number of yes. So let's start with one small demo. We are using a tool called Bubble. I want you to write it down. Write down the name, or if after this session you can connect with me. We are using a tool called Bubble. Now this Bubble, the website's name is bubble.io. We are going to use it, and using this tool, what we will do is we'll create a small form where we'll take, let's say, a name, first name, last name, email, address, whatever fields we want, and maybe a image as well. And once we are through with that, we'll submit it to the database. अभी ये सुनने में लग रहा होगा कि अब इसमें एक प्रोग्राम लिखना होगा. अभी प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे? So all these things, इसमें हमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है. It is just like कि simple line of code में simple drag and drop से आपका काम होगा. So सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम दो चीजें यूज करेंगे. एक ये टूल है बबल, और दूसरा एक टूल है, जस्ट अ सेकेंड. Okay, the first tool is Bubble and the second tool is Airtable. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, let's say हमें एक फॉर्म बनाना है. So what we'll do is we'll take an input. हम इसको नाम दे देते हैं, let's say name. एक और बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एड्रेस. एक और बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं फोन नंबर. हमें ये 3 फील्ड्स में डेटा लेना है और उसके बाद इस डेटा को सबमिट करना है. सो सबमिट करने के लिए हमें एक बटन चाहिए होगा, इसको हम नाम दे देते हैं. हम एक और एक टूल यूज करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे Airtable. So what we'll do is we'll create a base. इसको एक नाम दे देते हैं SIRTE.
यहाँ पे कुछ उसने पहले से ही हमें फील्ड्स दी हुई हैं, तो हमने क्या क्या लिया, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. सो वील चेंज दीज फील्ड्स, we'll remove these fields as of now. And the last one is phone number. So इसका एक टाइप हमने चेंज किया, सिंगल लाइन टेक्स्ट. Now what we will do is, हम इसका एक या में एक API कोड देता है, घबराना नहीं है, सिर्फ एक हमें कॉपी करना है, इसमें कुछ करना नहीं है. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर पे कनेक्ट करेंगे. ये मैंने यहाँ पे की ऐड कर दी. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बेस का नाम आ गया, SIRTE, जो मैंने लिया था, टेबल 1. इसको जैसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे, इसने वहां से हमारी सारी फील्ड्स भी उठा ली. हम इसको सेव कर देंगे. नाउ जस्ट एज सिंपल एज दैट, मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा. इसका वर्क फ्लो होता है कि लाइक हमें बताना है कि ये सबमिट पे क्लिक होने के बाद क्या होना है. सो वील गो ऑन स्टार्ट एडिट वर्क फ्लो, क्लिक हियर टू ऐड एक्शन. सो वील गो ऑन प्लगइन्स, एयरटेबल. हम चाहते हैं एक नया रिकॉर्ड वहां पे क्रिएट हो. ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक तरह से आपके एक्सेल की तरह दिख रहा है आपको. हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो, यहाँ पे नाम आ जाए, यहाँ पे एड्रेस आ जाए, यहाँ पे फोन नंबर आ जाए. सो व्हाट वील डू इज विल गो टू प्लगइन्स, ऐड क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड. टेबल 1 में हमें करना है. सो क्लिक हियर. तो जो हमारा एड्रेस है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, एड्रेस, नेम, फोन नंबर, तो उसको चूज करेंगे. ये हमारा इनपुट एड्रेस, इसकी वैल्यू, दैट्स इट. एक और ले लेंगे वहां पे नेम, तो हमारा यहाँ पे जो नेम है उसकी वैल्यू. फोन नंबर, इनपुट फोन नंबर लेंगे, उसकी वैल्यू. दैट्स इट, हो गया. अभी हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. हम सिर्फ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे. ये हमारी ये जो छोटी सी हमने एप्लीकेशन बनाई है, ये ओपन करेगा. अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टेबल पूरा खाली है. मैं जैसे ही यहाँ पे फीड करूंगा, लेट्स से, ये मैंने सबमिट किया, ये डेटा यहाँ पे आ गया. तो आपने देखा, मुझे एक भी लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं पड़ा. ऑब्वियसली अभी हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अभी मैंने ये जो पूरी प्रोसेस की है क्या है. इट इज जस्ट मेयरली ड्रैग एंड ड्रॉप. आपने देखा होगा मैंने कीबोर्ड से टाइप अभी से हमको बनाने के लिए, फॉर्म में डिटेल्स डालने के लिए किया. इसके अलावा से आई एम जस्ट यूजिंग माय माउस, नथिंग मोर देन दैट. तो ऐसे ही हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं. लेट्स से एक छोटा सा और पार्ट ऐड कर लेते हैं, इमेज. इसका टाइप दे देते हैं अटैचमेंट. सो अब हम जो फॉर्म बनाएंगे उसमें हम एक इमेज भी पास करते हैं. वापस डिजाइन पे हम जाते हैं. इस सबमिट बटन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. हम यहाँ चूज करते हैं पिक्चर अपलोडर. ये आ गया हमारा पिक्चर अपलोडर. वापस से हम हमारे पास सबमिट पे जाएंगे. वर्क फ्लो में जाके फिर से एक छोटा सा चेंज करेंगे कि हमारी जो ओके सॉरी, हम सबसे पहले जाएंगे प्लगइन्स पे, इसको री इनिशियलाइज करेंगे बस. तो वो अब हमारी इसने आप देख सकते हैं कि पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे, अब ये अटैच आ रहा है, ये आ गया. तो अब जो है हम वापस जाते हैं सबमिट बटन पे, इसके वर्क फ्लो में. वापस से हम इसको बना सकते हैं. लेट्स से
create new record. एक बार रीइनिशियलाइज कर देते हैं हम पूरी ऐप को। ओके, टेबल 1 में हमें डेटा डालना है। सो व्हाट वी डू इज, सबसे पहले लेते हैं नेम, हमारे नेम की वैल्यू, एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू, फोन नंबर हम ले लेते हैं, फोन नंबर की वैल्यू, और थर्ड है हम लेते हैं इमेज, इसमें हम लेंगे हमारे पिक्चर अपलोडर की वैल्यू। ओके, डन। वापस से हम जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा फॉर्म आ गया। अब हम ले लेते हैं, लेट्स से फिर से मैं अपना नाम ले लेता हूँ, SIRT92647 में एक इमेज अपलोड करनी है। सो वी कैन टेक एनी ऑफ द इमेज। लेट्स से ये एक इमेज मुझे मिली, ये इमेज यहाँ पे आपको शो हो रही है। Now I've submitted the image। हम देखते हैं क्या आ गया रिकॉर्ड। यस, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इमेज भी आ गई है। अगर मैं क्लिक करके देखना चाहूँ तो ये इमेज भी मेरे पास आ गई है। सो नाउ अब आपने देखा कि एक जो अभी तक हम एक PHP लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या .NET लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या जावा यूज कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्म्स बना रहे हैं, उस फॉर्म को एक डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद जो है हम हमारे पास पूरा फॉर्म की डिटेल सबमिट कर रहे हैं। अगर इमेज हमें सबमिट करनी तो उसके लिए एक अलग तरीके से इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट करके पास कर रहे थे। अभी हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है। ऑल वी आर डूइंग इज जस्ट अ सिंपल टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें आप में से किसी को कोई क्वेरी है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क कि कैसे हो सकता है, क्या करना है। आप चाहें तो इसको लिख लें, इस वेबसाइट का नाम है bubble.io। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, ये तो आउट ऑफ मैंने चूज किया bubble.io। बहुत सारे और मिल जाएंगे आपको, ग्लाइड ऐप मिल जाएगा, और आई थिंक नो कोड में है, और लो कोड भी है। लो कोड होता है जहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज, लेट्स से 80% तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, 20% आपको कोड लिखना होता है, वो भी दैट टू अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। कंपल्शन नहीं है, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें कोड लिख सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है, आप में से किसी को भी कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आपके इवन मेजर माइनर प्रोजेक्ट इस पे बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट सम वेरी गुड एप्लीकेशंस। आप पूरा फेसबुक इस पे बना सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, आप एक बार एक्सप्लोर करिए इसको। ये साइड में आप सारे ऑप्शंस हैं, सब है, पूरा फ्लो आप क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बना सकते हैं, कई लोगों ने बनाया भी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्टार्टअप करना है, तो बट अब वो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, तो अब इन टूल्स का यूज करके वो अपने प्रोटोटाइप्स बना पा रहे हैं। सो नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी नहीं है। हम विदाउट प्रोग्रामिंग ऑल्सो वी कैन मेक एप्लीकेशंस नाउ। Do you have any query? How do we link up third-party API in Bubble? Okay. Hello. Yeah. हेलो, आ रही है आपकी वॉइस, आ रही है बेटा, पूछे। सर मैं ये पूछ रहा था कि बबल जैसे अपन कोई एप्लीकेशन बबल से बनाते हैं तो क्या वो हम उसको मतलब कि इतना एफिशिएंट रहता है कि क्या हम वो किसी क्लाइंट को दे सकें? बिल्कुल बिल्कुल 500% एफिशिएंट रहता है, और इसके लिए ही ये बनाया गया है। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कई स्टार्टअप्स हैं जो अपना POC करते हैं, बट मैक्सिमम हम खुद हमारे कई क्लाइंट्स को हमने इस पे सर्विस दी है।
एग्जाम्पल अगर हमको एक हमें मान लीजिए ओला का क्लोन टाइप का कुछ बनाना है, टैक्सी वाला ऐप बनाना है, तो किसको सबमिट करना है बन सकता है इस पे। सक्सेसफुली हम इसे प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन एंड एवरीथिंग। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आप फिर से बोल सकते हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि फॉर एग्जांपल एक हमें ओला ओला एंड उबर जैसा अगर हमें कोई टैक्सी ऐप बनाना है और इसको हाँ। डिप्लॉय करते हैं और किसी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, बनाया जा सकता है इस हम पे। ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग, वॉलेट एंड सिक्योरिटी, सबसे सिक्योरिटी, तो वो सब क्या है इससे प्रोवाइड हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई तरह के टूल्स होते हैं, कई ऐसे ओपन सोर्स नो कोड और लो कोड टूल्स हैं जो आप अपने खुद के सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टीयर लेवल थर्ड टीयर की सिक्योरिटी पे जाना चाहते हैं, टीयर 3 सिक्योरिटी पे जाना चाहते हैं, तो आप खुद अपने ऑन प्रेमाइसेस जो सर्वर है या क्लाउड आपका खुद का है उस पर आप डिप्लॉय करके फिर उस पर एप्लीकेशन क्रिएट करके उनको दे सकते हैं आपके क्लाइंट्स को। एंड यस, मेरे पास एक और एक क्वेरी है कि हम थर्ड पार्टी एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो मैक्सिमम एपीआईज हैं वो हम इस पे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे डेटा ला सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें की जा सकती है। एनी मोर क्वेश्चंस? बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सो फील फ्री टू आस्क। सर जैसे हम ये बनाएंगे हाँ। क्लोज कर, जैसे ओला का या उबर का बना रहे हैं, तो ये सिक्योर हाँ। होगा? बेटा सिक्योर बिल्कुल है, बट मेरा कंसर्न है कि पहले आप ओला उबर बना तो लो। सिक्योरिटी कम्स नेक्स्ट व्हेन दैट प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड। और उसी के लिए मैंने आपको, क्योंकि अभी ये सब आपके जितने क्वेश्चंस हैं, आप सबके क्वेश्चंस है कि क्या ये सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर है। तभी आप अगर इसके बारे में पढ़ें तो ये प्रोडक्ट जो बबल, अगर सिर्फ बबल की बात करें तो इसको इतना मतलब लाइक इट इज हाईली फंडेड प्रोजेक्ट, दिस इज अ वेरी बिग एंड हाईली फंडेड प्रोजेक्ट जिसका वैल्यूएशन इज इन बिलियंस। तो आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसको सिक्योर करने से लेके एफिशिएंसी बढ़ाने तक, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। एंड यस, इट इज ऑल्सो सिक्योर फॉर पेमेंट सर्विसेज। तो फिर हम इसको कहाँ से सीख सकते हैं अच्छे से प्रॉपर, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन कोई बनवाए हमारे साथ कोई साथ? देखिए सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, सबसे पहली चीज, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एक होता है कि अगर आपको कोई हैंड होल्डिंग या इनिशियल एक पुश दे दे यस, तो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिल जाए अगर कोई प्रोजेक्ट देखिए बनवा दे। प्रोजेक्ट बेस्ड पुश में तो प्रॉब्लम ये रहती है ना कि जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ वी आर ऑलमोस्ट 83 पीपल, 81, तो 81 आइडियाज पे पुश कैसे दे सकते हैं ना, इफ वी आर 80 पीपल। हाँ ये है, क्योंकि देखिए अगर मैं आज, और दूसरा इसका प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट देने में चैलेंज क्या होता है कि आज मान लीजिए चलिए मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट दिया, तो आपके पास नॉलेज इज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली, आपको फिर एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फिर मेरा सपोर्ट लगेगा। बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई टेल यू अबाउट कि ये टूल को कैसे यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेशंस एज वेल। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ हो रहा है, बट यस अभी जिस स्केल पे आप सब हैं आपके लिए मोर देन इनफ इसमें चीजें हैं। तो पहले आप टूल को एक्सप्लोर कीजिए कि उसमें क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस। उससे होगा क्या कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ हम ये चीज बना सकते हैं, हाँ हम ये चीज नहीं बना सकते इस पर्टिकुलर टूल पे। So you guys can connect with me anytime if you need any support or any help for this. We can also arrange some class. We are by with the help of Sneha ma'am. We have already have a MOU with your college, so we can organize a class session as well on Bubble in the college. I always feel good to come to college every time and meet my faculties, my younger colleagues. So we can plan that anytime. You can have a word with the Sure, Divyansh, we will definitely plan out if student raise very much queries. Definitely, Sure. we will plan in coming future.
Sure, ma'am. Okay, so guys, are there any questions or shall we proceed further? Is there any questions, student? You can write it down on the chat box. We will take it later. All right. So one more thing I would like to bring it to your notice is that, like right now you saw bubble, but किसी ने भी मेरे से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा. This is Airtable. Airtable is another format nowadays which is being used, जिसको लोग आज की डेट में एक एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं. इसको एक तरह से एक डेटाबेस की तरह हम यूज कर सकते हैं. अभी इसमें डायरेक्टली आप एक्सेस करते हैं. यू डोंट नीड टू राइट SQL और MySQL क्वेरीज, और आप इसको एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हैं. सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने फ्रंट एंड एप्लीकेशन बबल से बनाया और उसको कनेक्ट किया एयरटेबल से. तो जैसे हमने डेटा सेंड किया तो वो हमारे एयरटेबल में आ गया. ओके. सो लाइक जो हमारा आज का टॉपिक भी है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. आपने देखा होगा कि लाइक जब हमने हमारा वर्क स्टार्ट किया उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट होता तो लाइक वी वुड हैव मेड अ लॉट मोर applications as compared to today. But then again, yes, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इससे ये नहीं होता कि आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखें. प्रोग्रामिंग आपको आना जरूरी है, because that is going to help you a lot. उससे आपको ये पता चलता है what are the possibilities in IT sector, right? Okay. आप में से कितने लोगों ने ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में सुना है? लेट मी शो यू वन अनदर डेमोन्स्ट्रेशन. ये तो हो गया लाइक नो कोड के बारे में तो मैंने बता दिया. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली हर्ड अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी? इफ यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. सो आई विल शो यू अ वेरी गुड डेमो वी हैव डेवलप्ड. ओके, सिर्फ एक जन ने सुना है आई थिंक. पोकेमोन गो खेला है? बहुत फेमस गेम है पोकेमोन गो. आप कई लोग मैंने देखा जब ये आया था तो फोन लेके पूरे रास्तों में घूमते रहते थे पोकेमोन ढूंढने के लिए. सुना है, देखा है, खेला है कभी किसी ने? आई थिंक किसी ने भी नहीं देखा है, खेला. बिकॉज गाइज नई टेक्नोलॉजी पे आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अभी जितने भी क्वेश्चंस है ना, लाइक this I'm sorry to say but this shows a lack of knowledge about the latest technology. I mean मेरे से कोई ये पूछ रहा है हम OS बना सकते हैं क्या? आप बिल्कुल बना सकते हो, बट पहले आप फेबियानो की सीरीज और इनके प्रोग्राम ही सही से लिख लो. The thing is कि जब तक आप नई चीजों के बारे में अवेयर नहीं होंगे you won't be able to do much. हम सिर्फ बेसिक्स में ही रह जाएंगे कि ठीक है मैं अपना बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, अब मैं आगे मतलब अब मैं बिल्कुल ही लाइक कंसिडरिंग आवरसेल्व्स एज डेवलपर. बट जब तक आप नई टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे बहुत अच्छा हम बहुत मतलब लाइक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन नाउ. क्योंकि आज की डेट में हम कंप्यूटर साइंस IT वालों के लिए जॉब्स मतलब लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो गई हैं. आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. अगर किसी जैसे हमारे प्लेसमेंट प्रोग्राम्स ही हैं, अभी जो हाईएस्ट पैकेज गया हमारे इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से जाता है, अभी हमारे इंस्टीट्यूट से गया दैट इज 7.4 7.5. वो इसीलिए गया क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है. बट देन इन बच्चों ने हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने की पूरी इंटर्नशिप करी, इनको अलग अलग टेक्नोलॉजी पे हमने ट्रेन किया, तभी वो HR को बता पाए कि यस वी आर अवेयर अबाउट नॉट ओनली जस्ट जावा बट मोर देन जावा. जावा के फ्रेमवर्क्स क्या है, C++ यूज होता है तो कहाँ होता है, इसके रियल टाइम वर्किंग क्या है. अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप किया तो वो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक नहीं था, वो एंगुलर Node.js पे था. तो दैट्स हाउ यू गेट इनटू वेरी गुड जॉब्स. हमारे कई ऐसे पहचान वाले हैं जिन्होंने जॉब्स जब स्विच की तो ऑलमोस्ट 300% हाइक मिला. जिसका 7 लाख का पैकेज था उसको ऑलमोस्ट लाइक 18-20 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है, क्योंकि बस वो देवर एबल टू डू सम गुड वर्क ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज. अभी वो अगर सबको ये बोले यस सर मुझे C++ आता है, तो डू यू रियली थिंक कि HR would entertain? So not an issue guys, you really need to buck up and work out on some new technologies. At least जानकारी तो आपको रखनी चाहिए. Like अगर हम दिन भर if we are working on, हम यूज करते हैं Facebook, WhatsApp, Insta, so I would say कि like for like 10 minutes
सर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, जो नया टर्म हम सुन रहे हैं उसको देखें. सो अभी रिसेंटली हमने डेवलप किया ऑगमेंटेड रियलिटी, हमारा इन हाउस जो है, उस ऑगमेंटेड रियलिटी पे जो हमने वर्क किया, आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी देखने के लिए टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन, बट हमने इन हाउस डेवलप किया वेब बेस्ड. उसका पर्पस ये था कि ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ा सा एक हैवी फीचर है और वो सब डिवाइसेस पे सपोर्ट नहीं होता, बट देन हमारा ये सोचना है कि हमें मास को केटर करना, और अगर सब डिवाइस पे नहीं चलेगा तो हाउ डू वी केटर मास. तो हमने वेब बेस्ड बनाया. आज हम जितने भी लोग हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा फोन भी हो सकता है और एक बहुत ही छोटा सा सिंपल कैमरा विद इंटरनेट फोन भी हो सकता है. जो मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ वो आपका मतलब किसी भी तरीके, किसी भी स्केल के फोन पे चल सकता है. सो आई टेक जस्ट 1 minute, लेट मी स्टार्ट द डेमो. बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा कि आप सब अपना फीडबैक दें, और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो देन अगेन मैं आप ही के कॉलेज का हूँ, जब आप बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा. ओके, सो जस्ट आई टेक अ मिनट टू स्टार्ट द डेमो. Just a second. So is my screen visible to you? It is not visible, I think. Divyansh, it is not visible. Okay, ma'am, I'll just take a minute. Ma'am, is it possible if I can connect with my phone as well, so that I can share my phone screen? I will make a co-host as well on your phone. Okay, please. Please connect. Just a second. I'm connecting. Yes, yes. I have connected. What is the ID, Divyansh? Divyansh Singh. Its name is Divyansh Divyansh Singh. Singh. Yeah. Co-host बना दिया है आपको उसमें. Okay. Yes, screen is visible. Okay, so my phone screen is visible. Yes. All right. So this is one of the website. I'll share it with you guys as well, so you can see when you open it. So this is one of our platform we have developed, Innovative Biz AR, and we have a set of demos which we have created. You can see on the screen. So like various sectors where we are going to use, like automobile, education, real estate. So let us start with some demo. And I would really appreciate if you guys can, comment in the message box if you like it, if you don't like it. So that would be, very helpful for us. Can you see a 3D model? When I'm just focusing it on this object, so you can see a 3D model that has come up.
Yes, sir. Yes. This is just one basic example. I can just move it wherever I want. Let's see some another example. Let's see one good car. Is it visible to you all? Yes, it is visible. So basically what you are seeing right now, let me just open my camera and show you. This particular object which you are seeing, this is which, it's my phone is tracking this particular AR, it's tracking this. Let's come back. Let's take a education demo. So we just used a Earth score. Let's take an animated one. So you might have studied solenoid. So this is how a solenoid works. And it will move wherever I move, it will move. Now, for example, Sage Group is in real estate. So let's see a real estate example. So is it visible to you all? Yes, sir. Yes, So sir. basically, I can just hold it in my hand and see. I think this technology can generate more leads as compared to the traditional technologies. Exactly. Let's say we have this option of video. We can, show video on this. So is the video visible to you all? You can see that video is running. So it will move along with me. So guys, this is augmented reality. This is what we have been working on, and surely whenever I'll come to our college, I'll share these these cards with you also. You guys can also have a look at it. And the best part is we have created this thing on web. So कोई भी किसी कैसा भी फोन हो आपका, पुराने से पुराना हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट हो, सभी पे वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा. ऐसा नहीं होगा कि लाइक फोन पुराना है तो उस पे वर्क नहीं करेगा. ऑल यू नीड इज अ कैमरा कनेक्शन. दैट्स इट. सो मैं आप सबके कुछ फीडबैक जानना चाहूंगा, whether you liked it or not, you want to learn more about it or not. ये एक छोटा सा एक और एक एग्जांपल है, लाइक ये स्टूडेंट्स को अभी ज्यादा अच्छा लगेगा आई गेस. So this is augmented reality, which I wanted to show you. And if you can provide me a feedback, like whether you liked it or not, I'll surely share a couple of more details with you. I'll ask ma'am how we can do that. So you can, आपको मेरी जरूरत नहीं है उसमें, आप खुद सीख सकते हैं उससे. If you need any head start or any hand holding, surely we are there for you.
So this is like जो मैंने आपको बताया कि कहाँ से हमने टेक्नोलॉजी जो काम चालू किया था, विंडोज फोन एंड ऑल, एंड नाउ technologies like augmented reality and no code making applications without using a code. आज हम इन चीजों पे आ गए हैं. And मैं इसीलिए आप सबसे यही कहूंगा कि like you guys need to learn new things. बेसिक चीजें आप सीख ही रहे हैं, but in your free time you really need to understand what new technologies are coming, क्या नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, so that आप उसके बारे में अवेयर रहें. एंड वही आपको हेल्प करेगा टू गेट यू अ बेटर जॉब एज कंपेयर टू व्हाट यू प्लान राइट नाउ. वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि यस मैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ, और जब आप उसके बारे में जानेंगे तो उसको सीखना भी चाहेंगे उस टेक्नोलॉजी को. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑब्वियसली मेरा जो टाइम लिमिट था दैट वाज वे मोर, बट देन आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ. एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी. Divyansh, we can run this session till 2:30. Okay. 5 minutes. Okay, so I'm open for questions. Anyone who has any questions, feel free to ask me. Anything related to no code or augmented, or what are the other things that are coming up? Feel free to ask me. I think this particular thing is not yet added in the RGPB University. Is it right, Divyansh? Yeah, as of now, this is not added, but yes, gradually AR and VR are, they are about to be implemented, because many of the people have launched courses on these things. But then only thing is, the best part where we come is कि मैम हमने इसको वेब पे डेवलप कर दिया है. अभी जितने भी लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन मोबाइल एप्लीकेशन. दे आस्क यू टू डाउनलोड देयर मोबाइल एप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल बी एबल टू सी थिंग्स. देन उसमें भी कई फैक्टर्स होते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन भी कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ डिवाइसेस पे, मतलब किसी एक टाइप के डिवाइस पे ही इंस्टॉल होगी या उस पे सपोर्ट होगी, बाकी नहीं होगा. सो यहाँ पे वेब में बेनिफिट ये है कि आपका किसी भी टाइप का फोन हो, कितना पुराना हो, डजंट मैटर. सिर्फ इंटरनेट और कैमरा, ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं इसको. ऐसे ही सेम मैम आई वुड से कि नो कोड एप्लीकेशन, दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली आई बिलीव कि स्टूडेंट्स शुड लर्न. इससे बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी कुछ एंड में जाके कुछ एक लिमिटेशंस आते हैं. जब आप कुछ बड़े एप्लीकेशंस प्लान करते हो तो वहां से स्टूडेंट्स का एक सेल्फ इंटरेस्ट जागता है कि यस अब मेरे को कोडिंग की जरूरत पड़ गई है, नाउ दैट्स वेयर दे फील कि हाँ अब मुझे सीखना चाहिए. तो ये बेनिफिट भी है. जबकि नो कोड से इफ आई विल शेयर सर्टेन एग्जांपल्स विद यू, सो यू विल सी बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनी हुई है. कई बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो नो कोड पे अपने टूल्स डेवलप करती हैं, इन हाउस टूल्स डेवलप करती हैं, ऑटोमेशंस में अपने टूल्स डेवलप्ड हैं. अगर मैं आपको हमारा ही एग्जांपल बताऊं तो हमने ही कई अपने इन हाउस जो वर्किंग है उसको ऑटोमेट की हुई है यूजिंग नो कोड टूल्स. तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे को कई ऐसे लोग थे जो मेरे लिए होता है कि अनप्रोडक्टिव वर्क करते थे, तो अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वर्क भी ऑटोमेट हो गया. सो नाउ वी आर सेविंग मनी, वी आर सेविंग टाइम. एंड ये चीजें बहुत इजी हैं, ये सिर्फ सुनने में बहुत बड़ी लगती हैं. जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में देख रहा था, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर सकते हैं क्या, क्या हम ये सिक्योर कर सकते हैं. माय पॉइंट इज गेट टू द ग्राउंड, गेट टू द रूट्स, लर्न द बेसिक्स फर्स्ट. उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थर्ड पार्टी है या क्या हम उसको कर सकते हैं. क्योंकि आज की डेट में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे टाइम पे ये नहीं थी इतनी. आई मीन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप एप्लीकेशंस. अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए थे, हम खुद तो डेवलप करते थे, बट जब प्रोजेक्ट्स बड़े होते थे तो हमें डेवलपर्स नहीं मिलते थे, क्योंकि डेवलपर मिलते भी थे तो उनके टेक्नोलॉजिकल पार्ट जो है लिमिटेड था, कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा था नहीं. प्लस जब जो मिलते थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव डेवलपर्स होते थे.
उनकी सैलरी देवर, जब हमारे पास हम ही 10-20 हजार भी नहीं कमा पा रहे तब वो हमसे 50 हजार मांगते थे. So these were some various challenges we used to face, which now we feel कि अब अगर हम इनको इस टाइम पे, हमारे टाइम पे वो टेक्नोलॉजी होती तो हम बहुत कुछ और ज्यादा इवॉल्व कर सकते थे. बट देन यस, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अपनी स्पीड से बढ़ती है. हमने कई उस टाइम पे चैलेंजेस फेस किए हैं, लेट इट बी द कमर्शियल चैलेंजेस और द रिसोर्स चैलेंजेस. मेजरली रिसोर्स चैलेंज बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट बनाने जाते थे हमें तो पता है क्या बनाना है, हम खुद उसको बना भी रहे हैं, बट देन जस्ट बिकॉज कि अगर टीम छोटी है तो आपका काम जल्दी नहीं हो पाता था. वी वर नॉट एबल टू डेलीगेट दोज वर्क. तो ये कई चैलेंजेस ऐसे आते थे हमें. बट नाउ ये इसीलिए मैंने आई हैव चोजन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, लेट्स से जैसे नो कोड हो गया, ऑगमेंटेड हो गया, इसीलिए चूज किया. यू गाइज अंडरस्टैंड कि यस, अभी इंडस्ट्री किस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जहां आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है. अगर आपके मन में एक आइडिया है, इट हार्डली टेक्स 1 or 2 days टू डेवलप दैट आइडिया. अगर वो सक्सेसफुल हो गया फिर तो आपके पास यू आर फंडेड, आप महंगे से महंगे डेवलपर्स रख सकते हैं. सो आपको पहले ये नहीं सोचना है कि अच्छा हम ये बनाएं कैसे, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. इसीलिए आई वांटेड टू शो यू दिस नो कोड एंड AR. AR आज की डेट में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा एडवांस है. आपने खुद देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी इसका यूजेज स्टार्ट होना ऑलमोस्ट हो गया है. कि जो जैसे ये मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कार दिखाई, अभी आप कहीं कोई कार खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, सो ना इमेजिन वो बाइक उस ब्रोशर के ऊपर ही खड़ी है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया. तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है. आप अपने घर पे ही वो पूरी बाइक अपने सामने देख सकते हैं कि कैसी दिखती है, कहाँ है, क्या उसका जैसे होता है कि ना क्रेज, अच्छा उसका कलर क्या है, साइलेंसर कैसा है, ऑल दोस थिंग्स. तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से इवॉल्व होती है. और हम, बेस्ट पार्ट हमारे साथ ये है, हम इस फील्ड में है कि हमारे पास ये चीजें ओपन है. हम ऑलरेडी टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं. वी आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स. आप लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बनने के प्रोसेस में है, तो आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं. सिर्फ इट इज मैटर ऑफ द नॉलेज, जानकारी. क्या आपको पता था कि नो कोड नाम की चीज होती है? क्या आपको पता था लो कोड नाम की चीज होती है? सिर्फ इट इज मैटर ऑफ नॉलेज. आप सीखने में आप सब खुद से सीख सकते हैं. किसी ने भी आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चलाना नहीं सिखाया है, आपने खुद सीखा है. वैसे ये है. So, are there any questions you want to ask? Feel free. You can ask anything. Feel free. Divyansh, some students are messaging me regarding how your struggle journey was. कैसे स्टार्ट किया आपने पूरा स्टार्टअप, कैसे आपने फंडिंग अरेंज करी? स्टूडेंट वांट टू नो समथिंग अबाउट Okay. दिस. मैम आप तो जानते ही हो, आप तो थे तब. सो मैंने फर्स्ट सेम में जब था, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुआ था एज अ स्टूडेंट पार्टनर. ये तो आपके सामने की बात है. तो वहां से जो एक्सपोजर था वो बहुत अच्छा मिला. तो अब जो एक्सपोजर मिला उससे ये समझ में आया कि हम लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मोर देन अ जॉब, क्योंकि वो तो हमारे चालू ही हो गया था एक तरह से. एंड फॉर 4 years मैंने उसी में वर्क किया. तो जब कॉलेज में था तभी आई वाज इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. हमें ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाता था. पैन इंडिया मैंने उसी टाइम में बहुत ट्रेनिंग्स भी दी हैं. एंड एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट भी बताता हूँ. सो आई थिंक मैं 3rd year में या फाइनल ईयर में था. एंड मेरे को भेजा गया ग्वालियर, ट्रिपल ITM ग्वालियर, और बताया था कि 2nd year के स्टूडेंट्स हैं, 2nd year या 1st year के स्टूडेंट्स हैं. जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे समझ में आया कि वो PhD 1st year के स्टूडेंट्स हैं. मतलब मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो 2nd year के स्टूडेंट्स हैं. नाउ मैं 3rd year फाइनल ईयर में था, वो PhD वाले अभी उनको पढ़ाने के लिए भेजा. बट इट वॉज जस्ट, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इट वॉज जस्ट द कॉन्फिडेंस एंड द नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी जो मैं उनको पढ़ा सका. एंड इट वॉज अ गुड ट्रेनिंग. वहाँ पे मैंने उनको भी बताया कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, बट दे वर वेरी हैप्पी जस्ट बिकॉज कि जो नॉलेज शेयरिंग था वो दोनों तरफ से था. जो PhD होल्डर्स होते हैं उनकी नॉलेज ही एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है. तो दैट वॉज सम वन थिंग. फिर बाय द टाइम वी फिनिश्ड आवर फाइनल ईयर, जब फाइनल ईयर ऑलमोस्ट खत्म ही किया था, तो मेरा और मेरे जो पार्टनर्स हैं, हमारा प्लान बना कि लेट्स डू आवर ओन वर्क. क्योंकि हम कई कंपनी से उस टाइम पे कनेक्ट हो गए थे, कई अच्छे जॉब ऑफर्स भी थे उस टाइम पे हमें. माइक्रोसॉफ्ट से ही थे हम, मैं और मेरे साथ एक और थे, मिस्टर हिमांशु राठौर. हम दोनों को तो माइक्रोसॉफ्ट से ही ऑफर था. बट देन वी रिजेक्टेड दैट. तो वो जो रिजेक्शन था वो भी बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो उस समय कई लोगों की जो ड्रीम कंपनी थी उसको हम रिजेक्ट कर, हमें नहीं आना. तो पैकेज वाज गुड एंड एवरीथिंग वाज गुड. फिर उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया.
अपना लाइक जो फाइनल एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद वी स्टार्टेड विद आवर ओन ऑफिस, बढ़िया पूजा वूजा हुई, सब हुई। बट ये था कि करना क्या है, कैसे करना है। सो ग्रेजुअली फिर हमने लोगों से बात करना चालू किया, वी स्टार्टेड कनेक्टिंग, क्योंकि अब हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्वॉल्व थे, वी वर आल्सो पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट एज अ वेंडर। तो उनके जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते थे कई कंपनीज के उनके पास टू मेक मोबाइल एप्लीकेशन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, तो वो हमें रिकमेंड करते थे, बिकॉज वी वर, I'll not say very good, but yes, we were good in our work at that time on Windows platform. तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि Zomato का जो फर्स्ट फूड ऑर्डरिंग ऐप है उसका विंडोज वर्जन हमारी कंपनी ने बनाया। इकोनॉमिक टाइम्स की जो ईटी मार्केट शेयर मार्केट ऐप है उसका फर्स्ट वर्जन हमने बनाया। आप बॉम्बे जाएंगे तो वहां पे एक बहुत फेमस मोबाइल एप्लीकेशन यूज होती है, एम इंडिकेटर। सो एम इंडिकेटर भी वो हमने, बट ये बोलना बहुत आसान है, उसके पीछे के चैलेंजेस बड़े, मतलब इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि हम 3 ही लोग थे। अब 3 लोग और एक पैरेलली 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आई वाज द वन हु हैड टू ट्रैवल अ लॉट, बैंगलोर टू नोएडा, नोएडा टू गुड़गांव, फिर वापस बैंगलोर, फिर हैदराबाद, यही पूरी ट्रैवलिंग चलती रहती थी जस्ट टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रीमलाइंड। प्लस उस टाइम पे डेवलपर्स, जैसा मैंने बताया, मिलना बहुत मुश्किल होता था, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। बट क्योंकि हमारी फंडिंग, वी वर सेल्फ फंडेड ऑलवेज, तो हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते थे हम उसी से ही खुद को फंड करते थे। इनिशियल फंड्स मैंने और मेरे जो फ्रेंड्स हैं हमने खुद ही किए, वो पुट इन किए थे। बट यस, आई स्टिल रिमेम्बर, हमने जब ये डिसाइड किया कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करेंगे, तो हम 3-4 लोगों ने मिलकर सबसे पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था उसका सबसे बड़ा अमाउंट जो हमारे पास आया था वो आया था 2800 रुपए। जहाँ हमने 5-6 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी तो वो 2800 रुपए आया। अब वो उस समय भी 2800 रुपए को ज्यादा वैल्यू का नहीं था हमारे लिए, बट देन अगेन इट वाज अ स्टार्ट। सो देयर आर थिंग्स, जब मतलब चीजें स्टार्ट करना जरूरी होता है। वो उस समय अगर हम 2800 देखते तो आज हम इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे होते। सो दैट वाज बेसिकली काइंड ऑफ अ मोटिवेशन कि दैट की 2800 का भी 28,000 में कैसे कन्वर्ट करना है, 2.5 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दैट वाज द मोटिवेशन। सो हमने तभी से लाइक सिंस 2013, और क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में भी बेस था इवेंजलिज्म का, तो आई वाज ऑलवेज कंसर्न एंड एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग्स, जो मेरे को आज भी पसंद है। कि मैं कई बार मैं आई लुक ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि कभी मुझे खुद पढ़ाने मिले, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। बट मैं कई बार, मुझे अच्छा लगता है कि अगर कहीं मुझे पढ़ाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले आई प्रेफर। सो उस टाइम पे यही सारे चैलेंजेस थे हमारे साथ, एंड ग्रेजुअली थिंग्स वेंट। देन हम जैसे जैसे काम करते गए, कई कई लोग जुड़ते गए, कई अच्छे लोग जुड़ते गए। एंड यस, ऑब्वियसली एक बहुत सिंपल, अकेले हम काम करें तो पहुंच तो जाएंगे जहाँ जाना है, बट धीरे पहुंचेंगे। अच्छे लोग रहेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। सो ये एक चीज है जो मतलब आई थिंक आप सबको मानना चाहिए। बाकी ये है कि द जर्नी वाज एक्साइटिंग सिंस 2013 टू अभी। हमने वी सेलिब्रेटेड आवर 9th एनिवर्सरी ऑन 3rd June. 3rd June is our anniversary, so it has been like 9 years. So journey exciting थी with all the ups and downs, but yes, only thing is कि you don't have to give up. गिव अप करना तो एक इजी वे आउट है, ठीक है चलो यार छोड़ो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो giving up is not an option. When you get into entrepreneurship, giving up is not an option. So आप में से कोई भी मेरे फ्रेंड्स जो entrepreneurship में जाना चाहते हैं, या if they need any kind of help, if you have any project, you want any kind of funding or anything sort of that, feel free to me, I'll help you out. Student, you can ask the question. So, Amrit, you want to ask something? yes, ma'am. Ma'am, that sir, I understand that augmented reality not only uses means visually, and but it can also use various haptics and olfactory senses also. So, sir, how does that work? Means, and what usage does that have, especially what with haptics? See, haptics generally come into VR part, more of a VR, not AR. Because augmented reality is something like what I demonstrated right now. That's a marker-based reality, marker-based projection. We also have markerless projection. We also create geographical augmented reality, where
जैसे आप किसी लोकेशन पे जाएं तभी आपको वो इमेज या 3D मॉडल दिखे, जस्ट लाइक आपका पोकेमोन गो. बट व्हेन इट कम्स टू हैप्टिक्स, स्पेशली इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, जो मेटावर्स का आप अगर रिलेट करें, तो उन्होंने एक ग्लव बनाया जो कि आपको मेटावर्स में दैट विल गिव यू अ फील ऑफ कि आप क्या छू रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा एक फील देगा. So haptics generally come in that part. तो वो majorly VR part में आता है, जहाँ पे पूरा आपका एक experience जो है change हो जाता है. AR is like just superimposing on the real world object. Yes, so means there is a startup that works for creates equipment for medical students to train in surgery. I have heard about that Yes. startup. So So that is a VR, not AR. that is into VR. Okay, sir. I'm yeah, not AR. See, भी आपने एग्जांपल देखा तो आप उसमें प्रोडक्ट को सामने देख सकते हैं, आप उसका मूवमेंट कर सकते हैं. VR में एक आपका वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है. तो आप जब उस वर्ल्ड में होते हैं तो आपको वो हाथ में भी एक अगर फील आता है कि लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग और यू आर टचिंग समथिंग, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट कम्स इन VR, नॉट इन AR. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. जैसे हम लोग यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल में स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास आइडिया है, अब पैसे कहाँ से लेकर के आए. मतलब एक जनरल क्वेश्चन सबका यही होता है कि मैडम आइडिया तो है हमारे पास. तो ऐसी कोई जर्नी रही क्या दिव्यांश आपकी? देखिए, सबसे पहला तो मैं देखिए सबसे पहला तो ये है कि आइडिया पे पैसे कोई नहीं देता अनलेस कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो. और मतलब जो फंडिंग जो होती है उसके बहुत क्लियर रूल्स होते हैं. सबसे पहले देखी जाती है टीम, कि आप कितने अच्छे हैं. अकेले अगर आप हो तो बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. यू नीड टू हैव अ को फाउंडर. देन उसके बाद आपका आइडिया किस स्टेज में है, क्या वो आइडिया ही है. वो आइडिया तो सबको आते हैं, सुबह शाम दिन रात आते हैं. हम यहाँ 80 लोग हैं, हमें 800 आइडियाज होंगे हम सबके पास मिला के. तो वो कितना बन चुका है. फिर आता है उस पर कितना ट्रैक्शन है, कि क्या उस पर कोई बिजनेस हुआ है, आपने उसको सेल किया नहीं किया. आप बना चुके हैं, पहला तो बनाना तो है ही उसको प्रोडक्ट को, अब उस पर कितना बिजनेस ट्रैक्शन है. तो वो इस स्टेज तक आने तक आपको थोड़ा सा मेंटरिंग और गाइडेंस जरूरी है. क्या होता है जब वो हम ये देखते हैं ना कि अच्छा उसको 100 करोड़ की फंडिंग मिल गई, 1000 करोड़ की मिल गई, वो ऐसे नहीं होता है. उसके पीछे बहुत मेहनत लगी होती है, बहुत से लोग होते हैं जो उसको पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं. आपके आइडियाज पे नो डाउट आपका आइडिया अगर अच्छा है उसको फंड हो सकता है, बट उसके आइडिया और फंड के बीच की जो लाइन है ना, वो तो जो प्रोसेस है वो हमें समझना जरूरी है कि आपका आइडिया किस स्टेज पे है. क्या वो सिर्फ आइडिया है जो आपके दिमाग में है कि आप चाह रहे हो कि आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ और उसको बोलो सर मैं ये बनाना चाहता हूँ, लाओ मुझे पैसे दो. कोई नहीं देगा. अगर नहीं बना पाए तो, अगर आप नहीं बना पाए तो क्या होगा. फिर अगर आपका आइडिया बन चुका है तो क्या इसको लोग यूज कर रहे हैं, तो इस पे कितने लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, ये एक आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा. अगर यूज कर रहे हैं तो क्या अभी ये फ्री में आप दे रहे हो कि पैसे ले रहे हो. अगर पैसे ले रहे हो तो कितने लोग पैसे दे रहे हैं. अगर फ्री में दे रहे हो तो क्या 10 लोग हैं कि 10,000 लोग हैं. तो ये क्वेश्चंस के साथ आपको रेडी होना जरूरी है. और मेजर होता है आपकी टीम. ठीक है, आपने आइडिया बनाया, बहुत अच्छा बनाया, क्या आप चला पाओगे इसको. दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्या आप में कैपेबिलिटी है इसको चलाने की. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इन्वेस्टर को लगेगा, वो आपको बोलेगा ठीक है आप 10 लाख मांग रहे हो, मैं 25 देता हूँ, तुम मेरे को दे जाओ ये. बिकॉज वो ये समझ जाएंगे कि अभी आप इसको चला नहीं सकते. ठीक है, सो दे विल बाय आउट द आइडिया, या वो आपसे एक मेजर शेयर ले लेंगे आपके आइडिया में ताकि वो कंट्रोल करें. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. बट यस, पहला आप ये समझिए कि आपका आइडिया कितना बन चुका है, उस पर कितना ट्रैक्शन है, और आपकी टीम कैसी है. ये 3 पार्ट पे आप काम करेंगे तो यू आर हाफ वे थ्रू. Rahul, Sumali, anybody having any questions?
So Divyansh, I think no questions there. I have shared the e-feedback and e-assessment link. Student, kindly fill this e-assessment and e-feedback. And I would like to show this certificate. Divyansh, thank you so much for sharing the entrepreneurship journey and advancement in the technology during your startup journey. Thank you so much, ma'am. This is the certificate, and I also would like to call few students. Student, if you have any doubt, we have still 6 minutes. Divyansh, you may share some few things because it's 90-minute session, so we have to wind up accordingly. No, not an issue, not an issue. Only thing I'll say is, ma'am, I think all students are from SIRTE, right? A few of them from SIRTE, few of them from SIRTE, few faculty members are also there. Few other Okay, college great. students are also there. Few MTech student. Bashir, do you have any question? Rupali ma'am, I think from OIST, Rupali ma'am is there. Okay. So only thing I'll say is that in case you guys have any concern, any query, you can connect with me anytime. Feel free. Okay. Just you can. I'm just one call away. Don't call me every time, but you can just drop me a WhatsApp. Because if you'll drop me a WhatsApp, I'd be able to answer you more efficiently as compared to answering a phone call. Because वो आधे time busy आएगा. So you can drop me any of the query, and Sneha ma'am, if the situation calls, we can have a small session as well in the college. Because I would really like students to learn this no code application development. This is very useful for them, Sure. and this will give them a boost in the and confidence about the development of applications. They will start creating mobile applications, web applications. Because what we have understood is that many students loses confidence in programming and IT sector when we start learning programming and they're unable to do some basic things. So this is something where they can leverage the knowledge and increase their confidence and many students who are having startup ideas, they can actually make their applications like जो अभी idea है जो जैसे हम बात कर रहे हैं जो से अभी actually अब वो बना पाएंगे. Sure. Or else you guys can come to our office. We have our training center as well in MP Nagar, so you guys can come up there. We can keep a small session for you. So feel free. I mean, I love to teach, I love to train, so always there for you. Sure. Rahul, do you have any doubt? The thing that I'm feeling is that in the university and whatever is running in the industry, there is a gap. There is a big gap, and students are facing challenges while they just get job as if at the fresher level, because whatever they have studied 4 years, they think that कि भाई ये काम नहीं आ पा रहा है. ये industry gap, I think it should be cover up. Yes, this industry gap needs to be narrowed down, because obviously जैसा मैम आप बता रहे हैं कि I too understand in my daily process whenever I meet students, it is a big lack of knowledge about the new advancements. They want to learn, but they don't know where to and what to learn. Sure. So I think Divyansh, no questions. I would like to again thank for this wonderful session and wonderful journey. Thank you so much, ma'am, for inviting me. And I would like to invite you. I will discuss with the director, sir, regarding the lectures. And Sure. thank you so much for being. Thank you with so us. much, ma'am. Thank you, everyone. It was really nice sharing with you and connecting with you all. And once again, feel free to connect with me anytime. Thank you so much. Thank you, Thank so you, much. ma'am. I'm ending this session now. Thank you. Thank you so much.